Namaste, myself JVN Dr. S. Bundela, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, Rajasthan, India. Learners, today we will discuss on session topic name is State Secretariat Functions and Role. Especially in Rajasthan. We will discuss both languages, first in English, then after Hindi. Let's see in English. The State Secretariat is a supreme administrative body of the state administration. So, it does the work of policy and law making and controlling the subordinate institutions as it is at the highest level in the state. So, it performs the following tasks which can be seen by the following points can. One by one. First, in the context of policy and planning, the main functions of the Secretariat is to give impetus to public welfare and development work. For this is prepares policies and plans. The last place is the one where the Chief Minister and other Secretariat, including the Chief Secretary, etc., are there. Second, with reference to law and rule makings. Today, only by law, not only the individual and society can be controlled, but it is very important to maintain the system. The Secretariat contains the necessary information, so based on them all the laws and rules are made. Third is in the context of conducting administrative functions. Being the apex administrative institutions of the state administration, the Secretariat implements programs and law through its subordinate office and staff. It resolves the hurdles in their regards and also guides and supervises others, subordinate officers and institutions. And next, fourth is in coordination context. It maintains mutual coordination among other organizations, solves all the problems that may come between them. This Secretariat coordinates at the following level: between the authority and the state government, between the central government ministry and state government departments, between various departments of state administration, between private institutions and state government, between politicians and government employees, the top and subordinate officers of the same department, between the pressure group and the state government, between the public and the state administration,
etc. Next is with reference to the arrangement of employees. Recruitment, training, promotion, transfer, salary and allowances and other necessary service terms and conditions of public servants working in state administration and determined by the Secretariat. Formation of new public services, creation of posts, increase in posts in the state, and reduction, revision of salary, etc. is done at the Secretariat level itself. Next is in the context of budget. Finance is the blood work of modern administration. Every small or big work depends on financial resources. Therefore, the annual income is prepared by the budget itself. The branches of each department prepare their budget and send it to Secretariat. This budget prepared by final, the Secretariat departments it applicable in the state. After the budget is formed, the implementation is also done by the Secretariat. And next is in the context of control and evaluation. For the success of any work, it is necessary that it is examined and evaluated. The Secretariat only evaluates the schemes and programs implemented by the state government. The obstacles and program etc. come in the way of the evaluation. Get information about. And next is with reference to contact with the public. Examination of schemes and programs, publicity is also by the administration among the general public. At present through radio, TV, newspaper, posters, holdings, etc., the government gives information about its scheme to public timely. Next is in the context of public grievances redressal. Many complaints in the state come to the Secretariat every day. These complaints are also redressed by the Secretariat. It takes the same action against the guilty employees. And next and last is with reference to the gathering and reporting of information. Every executive body of public administration prepares its annual information and facts. It is kept in all the departments located in the Secretariat. The data helps in making new plans through information. The reports of annual progress in the Secretariat are kept, they are highly beneficial for politicians, researchers and administrative officers. Let's see in हिंदी. देखिए आज का जो सेशन है उस सेशन का नाम जो है वो है राज्य सचिवालय के कार्य और भूमिका. हमने पिछले सेशंस में बात की, पिछली वीडियो में बात करी थी राज्य सचिवालय जो है उसकी प्रस्तावना, उसकी आवश्यकता, यानी उसके बाद में बात की थी हमने उसके संगठन, उसके स्ट्रक्चर को लेकर. और आज हम जो बात कर रहे हैं वो आपके राज्य सचिवालय की कार्य और भूमिका की. तो देखिए राज्य सचिवालय राज्य प्रशासन की एक क्या है सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था.
इसलिए नीति निर्माण और कानून निर्माण और अधीन संस्थाओं पर नियंत्रण रखने का काम भी यही करता है, क्योंकि यह राज्य में सर्वोच्च स्तर पर है और इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न किए जाते हैं, जिसको हम कुछ बिंदुओं के द्वारा देख सकते हैं। ये जो काम करता है राज्य सचिवालय, उसमें सबसे पहला जो प्रमुख कार्य है वो नीति और योजना निर्माण के संदर्भ में। सचिवालय का प्रमुख कार्य जन कल्याण और विकास कार्यों को गति प्रदान करना है। इसके लिए ये नीतियां और योजनाएं तैयार करता है और यही वो जगह है जहाँ पर मुख्यमंत्री और जो मुख्य सचिव है उसके साथ में बाकी जो जितने भी विभागों के सचिव हैं वो काम करते हैं। दूसरा जो है वो आपके कानून और नियम निर्माण के संदर्भ में। आज कानून के द्वारा ही न केवल व्यक्ति और समाज को नियंत्रित किया जा सकता है, बल्कि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी ये जरूरी है। सचिवालय में आवश्यक सूचनाएं होती हैं, अतः उन सब के आधार पर कानून और नियमों का निर्माण किया जाता है। इसके बाद में अगली बात है वो है प्रशासनिक कार्यों का संचालन, उनके संदर्भ में। राज्य प्रशासन का शीर्ष प्रशासनिक संस्थान चूँकि राज्य सचिवालय होता है, इस कारण से सचिवालय अपने अधीन कार्यालयों और कर्मचारियों के माध्यम से कार्यक्रम तथा कानूनों का क्रियान्वयन करता है। इस संबंध में आने वाली बाधाओं का ये समाधान करता है और अन्य अधीन अधिकारियों और संस्थाओं का समय समय पर मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करता रहता है। तो दिक्कतें भी आती है तो उनको दूर भी यही करता है। इसके बाद में अगला है समन्वय के संदर्भ में। यह अन्य संगठनों के साथ आपसी तालमेल बनाए रखता है, समन्वय बनाए रखता है, उनके मध्य आने वाली सभी समस्याओं का ये समाधान करता है। ये सचिवालय निम्न स्तर पर या निम्न प्रकार से समन्वय करता है: प्राधिकरण और राज्य सरकार के मध्य, केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य सरकार के विभागों के मध्य, राज्य प्रशासन के विभिन्न विभागों के मध्य, इसके अलावा निजी संस्थान और राज्य सरकार के मध्य, राजनीतिज्ञ और सरकारी कर्मचारियों के मध्य, और इसके अलावा एक ही विभाग के शीर्ष और अधीनस्थ कार्यालयों के बीच में। कई बार हो जाता है कि जैसे विभाग और निदेशालय दोनों में टकराव हो जाए, ठीक है, तो उसी स्थिति में आपके ये उनका निपटारा करता है। इसके अलावा दबाव समूह और राज्य सरकार के मध्य और जनता और राज्य प्रशासन के मध्य अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो उनको दूर करने का काम भी राज्य सचिवालय ही करता है। इसके बाद में अगला मेन पॉइंट हमारा काम जो है इसका सचिवालय का वो है कर्मचारियों की व्यवस्था के संदर्भ में। देखिए, राज्य प्रशासन में कार्यरत लोक सेवकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, स्थानांतरण, वेतन और भत्ते और अन्य आवश्यक सेवा नियमों तथा शर्तों का निर्धारण सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। राज्य में नई लोक सेवाओं का गठन करना हो, पदों का निर्माण करना हो, नए पदों में बढ़ोतरी और कमी करनी हो, वेतन में संशोधन करना हो इत्यादि सचिवालय स्तर पर ये सभी काम देखे जाते हैं आपको। इसके अलावा अगला जो काम है वो बजट के संदर्भ में। वित्त आधुनिक प्रशासन का रक्त का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में रक्त, वैसे ही प्रशासनिक व्यवस्थाओं में जो पैसा है, वित्त है, वो रक्त का काम करता है। ये बहुत बार कई बार क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके अलावा प्रत्येक छोटा या बड़ा कार्य वित्तीय संसाधनों पर ही निर्भर करता है। छोटे से काम से लेकर बड़े से बड़ा काम सभी बगैर पैसे के नहीं हो पाएगा। प्रत्येक विभाग की शाखाएं अपना बजट तैयार करके सचिवालय में भेजती हैं। सचिवालय के विभागों द्वारा तैयार किया यह बजट राज्य में लागू होता है। बजट बनाने के बाद इस पर क्रियान्वयन भी सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है। तो मतलब सचिवालय में जो वित्त विभाग है वो क्या करता है, बजट तैयार करता है, ठीक है, सभी डिपार्टमेंट से फाइनल करवाता है और उसके बाद फाइनल अपने स्तर पर भी करके क्या करता है, ये बजट को पास करवाता है। देन उसके बाद में जब पास हो जाता है तो इस पर क्रियान्वयन भी यही देखता है, इसको लागू भी यही करता है।
इसके बाद में नियंत्रण तथा मूल्यांकन के संदर्भ में किसी भी कार्य की सफलता के लिए ये जरूरी है कि उसको बीच में जांचा जाए और उसका मूल्यांकन किया जाए। देखिए, अगर काम को अगर आप इवैल्यूएट नहीं करेंगे, जांचेंगे नहीं, तो उसका पता नहीं चलेगा कि क्या उसमें समस्या है, कितना वो सफल हुआ है। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित योजना और कार्यक्रमों का सचिवालय ही मूल्यांकन करता है। मूल्यांकन के द्वारा मार्ग में आने वाली बाधाओं और प्रगति इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती रहती है। इसके बाद में अगला है जनता से संपर्क के संदर्भ में योजना और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार भी आम जनता के मध्य प्रशासन के द्वारा ही किया जाता है। आपने देखा होगा कई बार कर्मचारी अपनी योजनाओं को लोगों को बताते रहते हैं। वर्तमान समय में रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, पोस्टर, होर्डिंग्स आदि के माध्यम से सरकार अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देती रहती है। बहुत बार आपने कई बार देखा होगा रोडों पे जाते हुए होर्डिंग्स लगे रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके जो समाचार पत्र है उसमें से जानकारी होती है, रेडियो जो है, टीवी है, उन पर इनके बारे में बताया जाता रहता है। अगला है जन शिकायत निवारण के संदर्भ में राज्य में अनेकों शिकायतें प्रतिदिन सचिवालय में आती रहती है। इन शिकायतों का निवारण भी सचिवालय के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक विभाग काम करता है, लोक शिकायत विभाग, ठीक है। उसके द्वारा ये शिकायतें सुनी जाती हैं और उनके द्वारा ये दूर की जाती हैं। दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध यही सचिवालय फिर काम करता है और उसके बाद में उनको सजा दी जाती है। ये सभी बातें सचिवालय के द्वारा ही देखी जाती हैं। इसके बाद में अगला और अंतिम जो है वो है सूचनाओं के एकत्रण और प्रतिवेदन के संदर्भ में। देखिए, लोक प्रशासन की प्रत्येक कार्यकारी संस्था अपनी वार्षिक सूचनाओं और तथ्यों को तैयार करती है। यह सभी सचिवालय में स्थित विभागों में रखे जाते हैं। आंकड़े सूचना के द्वारा नई योजनाओं को बनाने में मदद मिलती है। सचिवालय में वार्षिक प्रगति के जो प्रतिवेदन रखे जाते हैं वह राजनेताओं, शोधार्थियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, क्योंकि देखिए जितनी जो भी रिपोर्ट्स आती हैं उन सभी रिपोर्ट्स को सचिवालय अपने स्तर पर मेंटेन करके रखता है। जब कभी किसी शोधार्थी को, रिसर्च स्कॉलर को कोई डेटा की ज़रूरत होती है तो यहाँ से संपर्क करके वो डेटा एक्चुअल लिया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी को भी यदि कहीं कोई पॉलिसी बनानी, कार्यक्रम बनाना है तो वो यहीं से लेता है। और इसके अलावा किसी मंत्री को भी अगर कहीं कोई नीति बनानी है, क्योंकि देखिए मेन तो नीति निर्माता राजनेता मंत्री है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ से ले लेते हैं। तो ये सभी जो है कहीं ना कहीं आपके जो हमने जो काम देखे हैं, जो भूमिका है वो आपके राज्य सचिवालय की है। तो राज्य सचिवालय एक राज्य स्तर का सबसे महत्वपूर्ण एक शीर्ष प्रशासनिक इकाई है, संस्था है, जिसमें आपके न केवल राजनीतिक बल्कि प्रशासनिक आला अधिकारी, ठीक है, शासन के जितने जो भी टॉप मोस्ट जो अधिकारी हैं जो कि राजनीतिक है, प्रशासनिक हैं, वो सभी यहाँ उनके कार्यालय हैं। यहाँ रहकर वो अपना काम करते हैं, जिससे कहीं न कहीं आपके पूरे राज्य पर नियंत्रण रखा जाता है। तो आज का जो सेशन हमारा वो क्या था, राज्य सचिवालय का कार्य और भूमिका के बारे में। तो इनमें से भी कई बार आपके क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षाओं में आते रहते हैं, जिसमें से आपके यही है कि भी कितने इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। मान लीजिए 3 दे दिए और चौथा उपरोक्त सभी, या यह हो सकता है 1 दे दिया और बाकी नहीं दूसरे हैं। तो कहीं न कहीं क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। पूरा आपके सामने ये कहीं न कहीं आपके राज्य सचिवालय की जो हमने बात करी है, इसको आप अपने द्वारा नोट्स बनाइए और टाइम पे इसको रिवीजन करते रहिए, जिससे आप अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार हो सकें। तो आज का जो हमारा सेशन था वो आपके कहीं न कहीं फंक्शन एंड रोल को रिप्रेजेंटेट करता है, उसके बारे में बताता है, ठीक है। तो आप इसको टाइम पे पढ़ते रहिए, देखते रहिए और आगे से आगे हमारे इस वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको अपने सेशंस क्लियर करने की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। और यही है कि
कहीं ना कहीं हमारा जो कोशिश है, हमारा जो प्रयास है वो यही है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका अपना लाभ ले सकें और आप टाइम पे और आगे से आगे वीडियो देखते रहें। ये जो वीडियो तैयार किया गया है वो ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के 2.0 डिजिटल वर्जन के द्वारा तैयार किया गया है, तो इसलिए आप हमारे वीडियो को देखते रहें, जिससे आपको अपने नए नए ज्ञान की जानकारी मिलती रहे। अपना सिलेबस, अपना सेशन आप कंप्लीट करते रहें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार।